अच्छा, इमेजेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक बिटमैप इमेजेस होते हैं और एक वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस होते हैं। अब हमने इनके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यू नीड टू लर्न हाउ अ बिटमैप इमेज इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, and then how this bitmap image is encoded in the form of a binary number. Because if there is a color that is there in the computer in the image, when you want to store it in the memory, it would definitely be converted into 0 and binary. Reason being, it has to be processed and then decoded further to be displayed on the screen. So encoded is definitely be there. There are key terms that we need to learn when we are discussing bitmap images. That's pixel, file header, image resolution and screen resolution, along with the color depth and bit depth. Then when we discuss about vector graphics, we also have the same terms that are related to vector graphic images. They are drawing objects, property, and the drawing list. Then we will be discussing the uses of bitmap images and vector graphic. What are the situations and conditions when we use bitmap images or a vector graphic image? So now moving on to the images. The way we discussed by numbers, decimal numbers and binary numbers, we got bits and bytes. Okay? Same case here. In this case, we have got colors, different colors, bits, 4 bits, 8 bits, 16 bit, 32 bit, and so on and so forth. The way we had the numbers. सही है? अब हमारे पास अगर क्या होंगे, 4 bits हैं, तो 4 bits के possible colors हमारे पास क्या होने चाहिए? 1, 2, 4, 8. 1, 1, 1, 1. 8 plus 4 plus 2 plus 1. कितने हो गए? 16. So in case of 4 bits, we have got 16 different combinations of colors. When we have got 8 bits, we will add 8 plus 8, 16, then 32, and so on. तो हम जब add करेंगे उनको, then we will be getting 256 possible colors. So range कहाँ बढ़ गई हमारे पास? 8 bits के अंदर, फिर 16 bits, और range बढ़ गई to 24 bits, 32 bit. We will get more possible combinations of colors with all the primary colors, that is red, green and blue. Is it clear? Yes. अच्छा, तो अब हम समझ ये यहाँ तक तो हमने कर लिया. अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं कि 4 बिट्स के अंदर लेस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 8 and 16 and 32 के अंदर हमारे पास ये रेंज बढ़ती जाएगी. देखो 64 into 64 into 64 will give these possible colors. फिर वही चीज होगी 256 possible combination of red, 256 possible combinations of green and 256 possible combinations of blue will give you these possible combinations of colors when we combine all these 3 colors. समझ आई बात? जी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. सबसे पहले हमारे पास था इमेज फाइल्स कितनी तरह की होती हैं. दे आर BMP, JPG, GIF, PNG एंड TIFF. अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ इमेजेस, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट वी नीड टू फोकस ऑन. द बिटमैप इमेजेस एंड द वेक्टर इमेजेस, these are the two images that we need to work on. Now, how would we represent these bitmap images and how would we store them? The main term that we need to discuss in case of bitmap image is the pixel. Pixel क्या होता है? The smallest block of color, the smallest unit of color. If you see किसी भी bitmap image को देखोगे तुम, या अगर मैं इसको zoom करती हूँ, ये देखो एक small block आ रहा है, ये square. This is basically called as a pixel. ये bitmap image में तो तुम्हें मिल जाएगा, but you can't find it in the vector image because when you are discussing or zooming in the vector image, you can't find these small units. So pixel is basically the basic element of the bitmap images. Now, extension of the bitmap image. When you save these bitmap images, you have got these extensions BMP, JPEG, GIF और PNG. ये हमारे पास possible extensions हो गई किस चीज की? bitmap images की. ये bitmap images जो हैं, they are actually composed by the fixed dots and these dots are called as pixels. ये pixels जो होते हैं हमारे पास multiple possible colors के होते हैं. It can either be red, green or blue, or it can be a monochrome. Monochrome क्या होते हैं? जिसके अंदर एक single color होता है, that is either black or white. ठीक है, तो monochrome images भी होते हैं हमारे पास और multiple colors के images भी होते हैं.
In both the cases we have got the fixed set of dots and they are called as pixels. ठीक है, बिटमैप इमेज के अंदर अगर हम फाइल साइज को देखें देन वी हैव गॉट द फाइल साइज बिगर एज कंपेयर टू द वेक्टर ग्राफिक्स. साइज किसका ज्यादा होगा? बिटमैप इमेजेस का. उसका रीजन ये है कि इसके अंदर हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं और पिक्सेल्स की बेसिस पे हमारे पास इमेज की रेजोल्यूशन सेट होती है. The more the pixels of the image is, the better the resolution of the bitmap image. The lesser the pixelated image we have, the lesser the resolution and the quality of the image would be. So that's the reason we get good quality bitmap image, due to which we have got the bigger size of the file in case of a bitmap image. You got the reason? You got the logic of that file size? Yes. Yes. And since the size of the image is bigger, so it would take up more space in the memory. Next point जो हमारे पास है इसका, if we want to zoom in, like हम जब scale करेंगे bitmap image को, जितना ज्यादा हम scale करते रहेंगे, जितना ज्यादा हम zoom in करते रहेंगे, ये उतना ही ज्यादा distort होता रहेगा. It would be more pixelated और उतना distort means उसकी quality जो है वो बढ़ती रहेगी. Like image जो है वो distort होता रहेगा. हम उसको ये नहीं देख सकते कि वो similar रहे या एक similar quality को या quantity of pixels को maintain रखे. वो distort होता रहेगा. अगर मैं तुम्हें इसका एक और image दिखाऊं, ये देखो, जितना तुम zoom in करते रहोगे ये ज्यादा pixelated है 300 by 300 pixels और ये less pixelated है. जैसे जैसे pixels कम होते जा रहे हैं ये हमें क्या देता जा रहा है? बैड क्वालिटी ऑफ एन इमेज देता जा रहा है. और जैसे जैसे मैं इसको जूम इन करती रहूंगी ये मुझे क्या करता जा रहा है? डिस्टॉर्ट करता है. दिस इज अ डिस्टॉर्टेड इमेज. ठीक है, समझ आ गया? जी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव क्वालिटी इन. वही हमने देखा कि जितना ज्यादा हम एनलार्ज करेंगे, जितना ज्यादा स्केलिंग करेंगे, उसका क्या होगा? इट वुड बी मोर पिक्सेलेटेड एंड डिस्टॉर्टेड. बिटमैप इमेज जो है वो हमारे पास फाइल का साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है. जितना ज्यादा हम इसकी स्केलिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम इसको पिक्सल डालते रहेंगे, वो हमारे पास क्या करता रहेगा? इसके फाइल साइज को भी चेंज करता रहेगा. बट प्रोसेसिंग पावर के एस्पेक्ट से अगर आप देखें, एज कंपेयर टू द वेक्टर इमेज, इट वुड कंज्यूम लेस पावर, लेस प्रोसेसिंग पावर. सिर्फ इसकी प्रोसेसिंग पावर क्या होगी कि जहां जहां कलर होंगे वहां वहां उसको ये नंबर असाइन कर देगा. दैट्स इट. जहां जहां पिक्सेल्स मिलेंगे वो वहां वहां उसको नंबर असाइन कर देगा. यहाँ पे देखो मोनोक्रोम इमेज है एंड इट्स अ ब्लैक कलर, तो व्हाइट को तो इसने 0 कर दिया बिकॉज इट इज नॉट अ कलर. उसके लिए इट्स नॉट अ कलर. बट सिंस ब्लैक इज अ कलर, सो इट हैज कन्वर्टेड दैट ब्लैक कलर टू 1 एंड द इमेज हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. ठीक है, so just simple less power is being consumed just because it has given the value to the colors that are actually being encoded in the memory. फाइल कंप्रेशन. अच्छा, अगर हमारे पास साउंड फाइल हो, हमारे पास कोई इमेज फाइल हो, इमेज में कोई वेक्टर हो या बिटमैप हो, द फाइल साइज शुड बी कंप्रेस्ड. अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी कंप्रेशन का है, तो मैं साथ साथ इमेज के साथ साउंड के साथ कंप्रेशन की टेक्निक्स बताती रहूंगी. तो अगर हमारे पास एक इमेज फाइल है और हमने उसकी फाइल की साइज को कंप्रेस करना है, तो क्या होगा हमारे पास कि उसका फाइल का साइज जो है वो रिड्यूस होगा. किस एस्पेक्ट से रिड्यूस होगा? कि अगर जैसे मैंने अभी तुम्हें ये मोजिला का एक वो दिखाया था, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ये वाला अगर मैं पिक्सल को रिमूव कर देती हूँ, ये वाला, और इस वाले पिक्सल को रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से ये ऑरेंज का लाइटर शेड को, इसको और ये 3 पिक्सल्स को अगर मैं रिमूव कर देती हूँ, तो क्या इमेज की क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइट कलर्ड थे. बट क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा पिक्सेल्स को अगर रिमूव कर देंगे जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारे फाइल का साइज रिड्यूस हो जाएगा. और फाइल के साइज को रिड्यूस करने की क्यों जरूरत है? बिकॉज व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, places means from one device to another or from one gadget to another, then it would reduce the file size. तो वो हमारे लिए बेनिफिट पे चला जाता है. एंड अनदर थिंग इज इट वुड कंज्यूम लेस मेमोरी स्पेस. तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो पिक्सेल्स हैं, अगर हम इनको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इमेज जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा when we are transmitting it from one device to another. Is that clear? Yes, ma'am.
ठीक है, फाइल कंप्रेशन के बाद हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पे वी कैन इजीली यूज द बिटमैप ग्राफिक्स. These are the photographs, the scanned images, photo editing tools. These are those areas where we use bitmap images. यहाँ पे हम वेक्टर नहीं कर रहे. वेक्टर हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें ड्रॉ करनी होती है कोई चीज, जिसमें हम स्केलिंग करेंगे तो उसके ऊपर, उसकी पिक्सल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम अगर किसी पिक्सल को हटाएंगे तो वो इमेज का पार्ट रिमूव हो जाएगा प्रॉपर. अगर देयर इज सर्कल या ओवल या एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, और अगर मैं उसके पिक्सल्स को हटाती हूँ तो वो लाइन बीच में से कट हो जाएगी, या सर्कल जो है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा उसका पार्ट. So this is basically the situation in which we can use the bitmap images. Okay, आगे चलते हैं. How it has been encoded. हर पिक्सल को हमने एक बाइनरी वैल्यू दे दी और वो रिप्रेजेंट करेगा एक डिफरेंट कलर को. सपोज 0 हमने दे दिया व्हाइट कलर को और ब्लैक को हमने दे दिया 1. तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आ गई वो सिर्फ जीरोस और 1 की फॉर्म में आई, जिसमें हमने ये 2 कलर से रिप्रेजेंट कर लिया. दिस इज द इनकोडेड वर्जन ऑफ द बिटमैप इमेज, दैट इज द मोनोक्रोम. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस मैम. अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास कुछ कलर्स हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे? वी हैव गॉट 1 बिट में 2 कलर्स, 2 बिट्स में 4 कलर्स, 3 बिट्स में 8 कलर्स एंड 4 बिट में 16 कलर्स. ये हमने यहाँ से देखा था. अगर हम वैसे भी देखें तो हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा. ठीक है, हम इसकी बिट की जो प्लेस वैल्यूज है उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आ जाएंगे. अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो भी इमेज है तो वो हमें शो करेगा कि कौन कौन से वैल्यूज हम इसके अंदर असाइन करेंगे. रेड कलर को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 से, ये प्रोसेसर ने खुद ही डिसाइड कर लिया. ब्राउन को 1 0 से, व्हाइट को 1 1 और ब्लू को 0 0 से कर लिया. नाउ इट इज बीइंग शोन, इस इनकोडेड फॉर्म के अंदर ये मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए. ठीक है, जी. अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, कलर्स और रेजोल्यूशन वर्सेस द फाइल साइज. कि किसी भी इमेज का कलर, जो पॉसिबल कलर्स उसके अंदर यूज हुए, और उसकी रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मींस द क्वालिटी ऑफ द इमेज. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं विद द फाइल साइज तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ कलर्स यूज्ड इन द इमेज और द क्वालिटी ऑफ द इमेज विद द फाइल साइज. फाइल साइज के ऊपर बढ़ेगी फाइल साइज या कम होगी? अभी हमने ये बात की, द मोर द पिक्सेलेटेड इमेजेस, the better the quality and the resolution of the image would be, and more possible colors would be used, but file size would be increased. अभी अभी हमने पीछे देखा था, वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कोई भी चीज, पिक्सल तो हम कर चुके हैं, रेजोल्यूशन पे आ जाते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास पिक्सल्स होंगे उतना ही ज्यादा रेजोल्यूशन होगी. बिकॉज किसी भी इमेज के फाइल को जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम जितने पिक्सल्स उसकी हाइट और विड्थ के अंदर यूज है हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द बिट डेप्थ. बिट डेप्थ क्या होती है? उसकी कलर डेप्थ को. अभी मैंने कलर डेप्थ तुम्हें नहीं बताया, तो अभी जितना हमने पढ़ा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ और हाइट के अंदर जितने भी पिक्सल्स यूज हुए होंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी इमेज रेजोल्यूशन आ जाएगी. ठीक है, कितने पिक्सल्स इमेज ने कंटेन किए हैं 1 इंच के अंदर, दैट वुड इनकाउंटर्स द इमेज रेजोल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन हो गया. और अगर हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर रो बाय द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर कॉलम, तो इससे हमें पता चल जाएगा स्क्रीन रेजोल्यूशन. बिकॉज एक स्क्रीन के ऊपर ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये रो और ये कॉलम. अगर हम एक रो और एक कॉलम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स स्टोर्ड हुए हैं या अपेयर हो रहे हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन हैव द स्क्रीन रेजोल्यूशन. और अगर टोटल इमेज के जितने भी पिक्सल्स हैं अगर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हमें इमेज रेजोल्यूशन दे देगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज रेजोल्यूशन एंड द स्क्रीन रेजोल्यूशन. सो फार ऑल क्लियर? यस. नाउ यू विल मूव टू द नेक्स्ट. अभी मैंने कलर डेप्थ नहीं बताया, मैं पहले कलर डेप्थ बता दूं तो फिर मैं तुम्हें इसका ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगी. हमारे पास पहले कलर डेप्थ बता देती हूँ. कलर डेप्थ बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ कलर्स, कितने बिट्स आप यूज कर रहे हो. अभी जिस तरह हमने किया था 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट और 16 बिट, हम बेसिकली उसको क्या करेंगे 2 raised to the power द नंबर ऑफ कलर्स. अगर हम
ये फॉर्मूला यूज इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी कलर डेप्थ आ जाएगी. व्हाट इज द कलर डेप्थ? if we have got 8 bits, then we will see 2 raised to the power 8, it will give you 256 colors. तो हमारे पास ये क्या आ गए, 8 bits. यहाँ पे 16 bits है, 2 raised to the power 16 will give you 65536 colors. 24 bits हैं, 2 raised to the power 24, ये हमें दे देगा ये possible colors. तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये कलर डेप्थ आ जाएगी. कलर डेप्थ किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट. अगर 1 बिट होगी तो कलर डेप्थ क्या होगी, 1 बिट. 2 रेज टू द पावर 2, ये 4 बिट दे रहा है हमारे पास. ये तो हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स आ गए कि 4 कलर्स यूज हुए हैं इसमें, और 4 कलर्स में कितनी बिट्स हैं, 2 बिट्स. तो ये हमें 2 बिट्स कलर डेप्थ दे रहा है. इसी तरह से 2 रेज टू द पावर 4 16 कलर्स हैं, और इसकी बिट डेप्थ है, कलर डेप्थ है 4 बिट. Are you getting what is color depth and how would you identify the color depth? Yes, ma'am, I got it. Basically, color depth हमें चाहिए होती है because there is a formula to calculate the size of an image. अगर हम किसी फाइल की साइज की एस्टिमेशन कर रहे होते हैं कि कितना उसने टोटल साइज ऑक्यूपाई किया है एक इमेज ने, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके टोटल पिक्सेल्स यानी हाइट और विड्थ में जितने पिक्सेल्स आए हुए होते हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर कलर डेप्थ की वैल्यू जो भी होती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी कैन हैव द इमेज साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज. इससे हमें पता लग जाता है कि टोटल हमारे पास इमेज का साइज कितना है. ठीक है. और अगर हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन आइडेंटिफाई करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जितने पिक्सेल्स हमारे पास टोटल हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन आ जाएगी. ये स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है और ये टोटल फाइल साइज ऑक्यूपाई कर रहा है इन द मेमोरी. बिकॉज मेमोरी के अंदर जब वो स्टोर कर रहा होता है तो जितने भी कलर डेप्थ होती हैं उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो जाती है, और उसी कलर डेप्थ के अकॉर्डिंग वो मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है. यहाँ पे स्पेस का कोई लिंक नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन पर अपेयर हो रही होती है चीज. तो दैट्स व्हाई वी डोंट काउंट कलर डेप्थ, but in case of file size estimation, when it is stored and encoded in the memory, then we have to discuss the color depth also. Is it clear, the concept of color depth and the use of it in the file size estimation? Yes. अच्छा, हमारे पास कुछ और चीजें भी होती हैं, that is basically the metadata. Metadata क्या होती है, the extra information about an image. What type of extra information that we have got? Let me just show you. मैं अपनी स्क्रीन पे देखती हूँ कोई अगर इमेज पड़ा हो तो. ये मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाती हूँ. ये सारा मेटा डेटा है. ठीक है. अब ये मेटा डेटा किस तरह से, इट इज जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ फाइल, द पाथ वेयर इट इज सेव्ड, व्हाट इज द साइज ऑफ एन इमेज, हाउ मेनी बाइट्स हैव बीन स्टोर्ड इन इट. ये देखो यहाँ पे अभी क्या है, साइज, ये किसका, इमेज का साइज है, और मेमोरी में कितना साइज इसने ऑक्यूपाई किया. यहाँ पे कलर डेप्थ भी काउंट हो रही है इसकी, बिकॉज इट इज मोर. यहाँ 203 है तो यहाँ पे 208 है. हैव यू सीन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आर यू ऑनलाइन? Yes, ma'am. हाँ बेटा जरा एक्नॉलेज कर देगा, बिकॉज टाइम कनेक्टिविटी इशू हो जाता है तो फिर मुझे पता नहीं होता. ओके, नाउ वी हैव गॉट द डेट क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड. साथ साथ हमारे पास जो चीजें हमें मिल रही हैं वो डिटेल्स में मिलेंगी. ये देखो अभी हम बिट डेप्थ की बात कर रहे थे, ये देखो 24 बिट डेप्थ दे रहा है. ये हमारे पास विड्थ और हाइट दे रहा है नंबर ऑफ पिक्सेल्स. अगर हम इस पिक्सल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. और अगर हम साथ में बिट डेप्थ को भी करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. क्लियर हो गया? दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज मेटा डेटा. क्या कहते हैं इसको? मेटा डेटा, या इसको हम फाइल हेडर भी कहते हैं. ठीक है. Yes. चलो, ये मोनोक्रोम इमेज है जिसके अंदर ब्लैक कलर को इसने व्हाइट वन कन्वर्ट कर दिया. दिस इज आल्सो मोनोक्रोम बिकॉज देयर आर ओनली टू कलर्स यूज्ड, व्हाइट एंड रेड. तो रेड की जगह हमारे पास डबल वन आ गया, और जहां जहां व्हाइट है इट इज शोइंग 0 इन इट. नाउ वेक्टर इमेजेस पे आ जाते हैं हम लोग.
नाउ वेक्टर इमेजेस, वेक्टर इमेजेस में देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक सर्कल भी बना सकती हूँ। ये एमएस वर्ड के अंदर देखो, इसके साथ साथ तुम्हें एप्लीकेशन भी पता लग रही है कि यहाँ पे मैंने सपोज एक सर्कल बनाया है। तुम्हें कोई पिक्सल नजर आ रहा है इसके अंदर? नो। जितना मैं जूम करूंगी तब भी इसके अंदर कोई पिक्सल नजर नहीं आ रहा। और जस्ट इन केस अगर मैं कोई पिक्सल यहाँ से रिमूव करती हूँ तो क्या होगा, सर्कल का एक पार्ट जो ऐसा लगेगा वो पिच ऑफ हो गया है, ठीक है ना। वो जब वो चिप ऑफ होगा तो क्या होगा कि हमें लगेगा कि यहाँ से ये पार्ट जो है वो रिमूव हो गया है, जबकि हमने वहां पे अगर हम करें तो वहां पे ये वाला सीन नहीं था कि वो हमारा जो है पार्ट वो रिमूव हो गया है इसके अंदर से। तो बेसिकली ये वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर है कि इसके अंदर हम शेप को ड्रॉ करते हैं, और जब वो शेप ड्रॉ होता है तो वो कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पे होता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पे, जैसे कि हम ग्राफ के अंदर किसी भी इमेज को ड्रॉ करते हैं तो ठीक है। दे आर बेसिकली द लाइंस, पॉइंट्स, कर्व्स, शेप्स, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स, या कोई भी शेप हो सकता है। तो दीज आर एक्चुअली द शेप्स दैट वी कैन ड्रॉ इन द कंप्यूटर। सही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्केलेबिलिटी। विल इट अलाउ स्केलेबिलिटी? यस। देखो स्केल किया मैंने, इसकी इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही इसके पिक्सल पे कोई फर्क पड़ा, ना ही ये डिस्टॉर्ट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इट वुड व्हाट allow scalability. Objects are and properties are stored mathematically because x and y coordinates के according ये draw होता है. It has got fixed set of shape. अगर ये ओवल है तो ओवल रहेगा, सर्कल है तो सर्कल रहेगा, जितना मैं इसको इंक्रीज करती जाऊंगी इसका शेप अपने फिक्स कंपोनेंट्स के हिसाब से फिक्स रहेगा। स्केलिंग की वजह से शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा। फाइल साइज के ऊपर ना ही इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके अंदर ऐड हुआ है, एम्बेड हुआ है। सही है। कंप्रेशन इसके अंदर नहीं हो सकती। कंप्रेशन करने के लिए हमारे पास इसके अंदर दूसरी टेक्निक्स होती है जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे वहां पे तो हमने कंप्रेस कर लिया था इस एस्पेक्ट से कि जितने भी एक्स्ट्रा वो थे पिक्सेल्स उनको हम रिमूव कर लेते थे, तो हमारे पास फाइल का साइज जो है वो कम हो जाता था। एक और हमारे पास हम एंड में पढ़ेंगे कंप्रेशन रन लेंथ इनकोडिंग, जिसकी बेसिस पे हम बिटमैप इमेज को आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्केलिंग की वजह से क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डिस्टॉर्ट होता है, ना उसका साइज पे फर्क पड़ता है, स्केलेबिलिटी की परमिशन है इसके अंदर। कंपैरिजन हमने पहले कर लिया था कि बिटमैप इमेज जो है वो ज्यादा फाइल का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू द वेक्टर ग्राफिक इमेजेस, ठीक है। अच्छा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कौन कौन सी वो एरियाज है जहाँ पे हम वेक्टर इमेजेस को यूज करते हैं। तुमने देखा होगा वेबसाइट्स में, वेबसाइट में क्या बिटमैप इमेजेस चलेंगे या वेक्टर ग्राफिक्स चल रहे होते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमें वेबसाइट की क्वालिटी के ऊपर काम करना होता है। जितना तुम इमेज को सेव करोगे, उसको जितना जूम करके लेके जाओगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी यही होती है कि वो एक बेस्ट क्वालिटी इमेज हम ऐड करें वेबसाइट के ऊपर। कम ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा क्रिस्प इमेजेस अगर हम ना करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट की क्वालिटी होगी वो खराब हो सकती है। सो वी हैव टू हैव all the images that are used on the website should be with the good quality, and we prefer to have the vector images used in it. ये images animated भी हो सकते हैं, जैसे कि हम GIFs बनाते हैं तो वो animation हम इसके अंदर कर सकते हैं। Can be created and edited by using the text editor. Text editor के aspect से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक XML होता है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल या मशीन अंडरस्टैंडेबल एक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर हम आराम से इन वेक्टर्स और शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका तुम्हें ये नजर आएगा एक सैंपल कोड यहाँ पर, ये XML के अंदर लिखा हुआ है। जिस तरह HTML के बारे में पता है कुछ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यस। ये उसी तरह की होती है XML, जो कि बेसिकली यूज होती है किस चीज को, इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए। अब जैसे ये रेक्टेंगल है, हमने रेक्ट का एक वो लगाया, वो टैग लगाया, उसके अंदर हमने ये बता दिया कि इसके अंदर ग्लासेस कहाँ चल रही है, इसके अंदर हमने बता दिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, कहाँ से इमेज स्टार्ट होगा, विड्थ बता दी, फिल कौन से कलर से होगा,
स्ट्रोक्स कौन कौन से आएंगे, यानी कि आउटर बाउंड्री कौन सी आएगी, और फिर हमने स्टैक को क्लोज कर दिया. सो दिस इज बेसिकली एन XML लैंग्वेज. बाय यूजिंग दैट लैंग्वेज वी कैन इजिली ड्रॉ वेक्टर इमेजेस. ठीक है, तो scripting language is there, that is XML, due to which we have got scalability allowed in these images. अच्छा, raster images. raster images क्या होते हैं? अगर तुम ऊपर याद हो तो मैंने वहां पे बिटमैप के साथ एक वर्ड यूज किया था. बिटमैप इज एक्चुअली अ रास्टर इमेज. ठीक है, अब क्यों रास्टर इमेज है? क्योंकि वो पिक्सेल्स की फॉर्म में है और हम उसको स्केल कर सकते हैं. अगर हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर जो है वो हमारे पास रास्टर नहीं है. वी हैव टू हैव इट इन द फॉर्म ऑफ रास्टर. किस तरीके से? कि हम इसको PNG की फॉर्म में स्टोर करते हैं. इट इज अ रास्टर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट लॉसलेस डेटा कंप्रेशन. अब दो तरह की डेटा कंप्रेशन तुम्हारे पास होंगी, एक लॉसी और एक लॉसलेस. बिटमैप के अंदर लॉसी होगा या लॉसलेस होगा? बिटमैप के अंदर? हाँ, क्योंकि उसके अंदर पिक्सेल्स हैं, हम पिक्सेल्स को रिमूव कर रहे थे तो हमारी फाइल पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. इज इट लॉसी और लेकिन लॉसलेस? लॉसी होगी. लॉसी. लॉसी और होगी क्योंकि हम वेक्टर? पिक्सेल्स को फिर से रिट्रीव नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. एंड व्हाट अबाउट वेक्टर इमेजेस? कैन वी हैव लॉसी डेटा कंप्रेशन हियर और लॉसलेस? लॉसलेस. Lossless, perfect. So we have got lossless data file compression in this type of image. ठीक है, and due to which we have to store these image in the form of PNG so that we can have the compression allowed in it, but the compression is basically lossless for data compression. हमारे पास JPEG है. JPEG जो होते हैं इसके अंदर भी हम यूजुअली लॉसी डेटा कंप्रेशन को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे डिजिटल इमेजेस होते हैं. And it can easily be used to transmit file from one gadget to another because ये compress हो सकता है. जितनी भी फाइल्स कंप्रेस हो सकती हैं, चाहे लॉसी हो या लॉसलेस हो, हम उसको ज्यादा जल्दी ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो हो गया इमेजेस का. कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर तो पूछ लो. नो मैम, ऑल क्लियर. अच्छा, अभी हमारे पास हो रहे हैं 8 o'clock. मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें साउंड कराने की. अच्छा जी, साउंड में हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें करने कवर. नंबर 1, हाउ साउंड is stored in the computer. First of all, how computer can understand sound. Number 2, how would it be encoded? Number 3, the terminologies that are being connected with the sound file, or how file size depend on the sampling rate and sampling resolution, because these are the two terms that we can discuss easily when we are discussing sound storage. और फिर इन दोनों का क्या इम्पैक्ट आएगा. जिस तरह वहां पे स्क्रीन रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ का इम्पैक्ट हमने देखा था फाइल के साइज के ऊपर इमेज के केस में, वही हम यहाँ देखेंगे सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है ऑन द फाइल साइज. ठीक है, सो हियर इज द केस. लेट्स मूव ऑन टू द साउंड फाइल. सो वी हैव गॉट साउंड. अब साउंड के अंदर व्हाट डू यू थिंक? अभी मैं जिस इंटेंसिटी पे बोल रही हूँ, जो मेरी साउंड की पिच है, जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो अलग डिफरेंट है. अभी अगर मैं अपनी टोन को स्लाइड कर दूंगा तो क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा. सही है, लाउडनेस पे फर्क पड़ा. तो बेसिकली विद दिस एक्सपेरिमेंट हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इज इट? यस मैम. तो अगर कि ये वेव की फॉर्म में है, जैसे कि हम यहाँ पे बनाते हैं, ये वेव्स हैं. अगर के लो साउंड है तो इसकी क्वालिटी ऐसी है, और अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमारी ये साउंड वेव ऐसे चली जाएगी. तो इज इट यूनिफॉर्म? नो, इट्स नॉट यूनिफॉर्म. एंड इफ द साउंड इज नॉट यूनिफॉर्म, हमारे पास क्या आ जाता है बाइनरी के अंदर? या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी. यानी कि इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ये थोड़ा सा
आगे पीछे बन रहा है, बट ये इस तरह बनेगा 0 1 0 1 0 1. So is it uniform? Yes. It is uniform and it is constant. On the contrary, ये constant नहीं है, कभी ये हाई को उस पे जा रही है वेव, कभी लो हो रही है, कभी बिल्कुल ऐसे हो जाती है, कभी बिल्कुल इस तरीके से हो, तो इट कीप्स ऑन वेरिंग द साउंड वेव्स. अब हम इस तरह की चीज को किस तरीके से इनकोड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1? दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क. सही है. तो एंड इट वुड बी डिफरेंट एज कंपेयर टू इमेजेस एंड नंबर्स. तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि किस तरीके से ये वाली चीजें जो है स्टोर होंगी कंप्यूटर के अंदर. We have got sound waves with different frequency. ठीक है. We have got irregular pattern also. To convert these irregular patterns in the form of binary, we need to have one device that is called as sound encoder. There are two things, ADC and DAC. ADC basically analog to digital converter and DAC is basically digital to analog converter. We have got these two things. Which one do you think is a part of sound encoder? ADC. ADC. So यहाँ पे हमारे पास एक तो ADC होगा that can be used in this sound encoder, और एक हमारे पास क्या चीज होगी, बैंड लिमिटिंग फिल्टर. अब ये बैंड लिमिटिंग फिल्टर क्या होता है? तुम्हें बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज आ रही है मेरे घर से थोड़ी थोड़ी देर में? नहीं आ रही. आज नहीं आ रही, आज चुप है सारे के सारे. हमारे पास कोई 5-6 तरह के बर्ड्स हैं, तो वो क्या होता है, जब जैसे ही कोई पास जाता है ना, वो फौरन बोलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर यहाँ इस रूम में आवाज आती है. तो ये इस तरह की साउंड जो अगर जैसे मैं करीब से बोल रही हूँ, तो यू कैन सी कि मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ठीक है. और जो कुछ साउंड ऐसी है, जैसे अभी बाइक गुजरी, बाइक की आवाज, या लोग बाहर से गुजर रहे हैं तो उनकी आवाज भी आ रही है. जब भी ये साउंड ट्रांसमिट होगी किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर, यानी कि मैं रिकॉर्ड करके अगर ट्रांसमिट करूंगी, तो क्या होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है जिस साउंड की व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो, तो वो वाली साउंड जो है वो क्या हो जाएगी, वो फिल्टर हो जाएगी. और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वो वाली साउंड जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाएगी. इससे क्या होगा हमारे पास कि फाइल का साइज भी कंप्रेस हो जाएगा और एक्स्ट्रा फाइल जो साउंड है वो भी फिल्टर हो जाएगी. ठीक है. और ट्रांसमिशन भी हमारी फास्ट हो जाएगी, मेमोरी में स्पेस भी कम हो जाएगा. ठीक है. जो एक्स्ट्रा साउंड है वो सारी माइनस हो जाएगी. और वो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होती है? विद द यूज ऑफ दिस बैंड लिमिटिंग फिल्टर दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ साउंड इनकोडर. साउंड इनकोडर में दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो कि साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, डिजिट्स में. दूसरा बैंड लिमिटिंग फिल्टर जो कि कन्वर्ट करेगा उस साउंड को जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है और उसको माइनस कर देगा, और जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है उसको पास ऑन कर देगा. So clear so far what sound encoder do? Yes. Okay. So analog to digital में convert हो गया by the use of sound encoder. This is basically the format कि ये माइक्रोफोन से जब साउंड वेव्स कैप्चर होंगी तो ADC साउंड इनकोडर का पार्ट होगा जो कि इसको प्रोसेस करेगा 0-1 की फॉर्म में और स्टोर कर देगा. और इफ वी वांट टू सी कि कौन सी साउंड किस तरह रिकॉर्ड हुई है, तो वो DAC कन्वर्ट करके फिर स्पीकर्स में सेंड करेगा. ठीक है. सो हियर इज द यूज ऑफ ADC एंड DAC. ये ADC हो गया और ये हो गया हमारे पास DAC. ठीक है. एंड दिस इज प्रोसेसर. यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं जो कि फिल्टर कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड को एंड देन स्टोर इट इन द माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन. किस तरीके से ADC कन्वर्ट करके सैंपल्स कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमें सैंपल्स चाहिए. अब सैंपलिंग का क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ये ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल है, ADC ने इसको कन्वर्ट किया डिजिटल में, और जब ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा तो दीज आर एक्चुअली द पॉइंट्स वेयर इट एक्चुअली कलेक्ट्स डेटा. जब ये डेटा को कलेक्ट कर लेगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में डेटा आ गया. अभी हम उसको फर्दर डिटेल में भी देखेंगे. When DAC convert the same binary converted data, then it will form the analog signal and then it would be sent to the
स्पीकर्स और कन्वर्टेड इनटू द साउंड वेव। तो यहां तक ये बात समझ में आई? हाउ DAC एंड ADC Yes, ma'am. convert analog to digital and digital to analog conversion। अब हम ये देखते हैं कि साउंड वेव्स जो है वो बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है। ये एनालॉग सिग्नल है जो कि कंटिन्यूअस है, एंड दिस इज बेसिकली अ डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मींस द डेटा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमने डेटा कलेक्ट किया, इस पॉइंट पे डेटा कलेक्ट किया। एक मिनट मैं जरा इसका कलर चेंज कर लूं। हमने इस फॉर्म के ऊपर डेटा कलेक्ट किया, यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, यहाँ डेटा कलेक्ट किया, यहाँ डेटा कलेक्ट किया। सो एक साउंड वेव के अंदर हमारे पास ये पॉसिबल पॉइंट्स हो गए जहां से हमने डेटा कलेक्ट किया। wherever the data has been collected, it means कि this is the point that has been converted to the binary or discrete data। ठीक है, so now हम फर्दर आगे जाते हैं। अभी इसको और डिटेल में हमने देखना है, ये तो अभी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया तुम्हें। Analog waves are needed to be represented digitally, so replicating analog waves into the discrete values by collecting the samples of the same analog signals। We know what frequency is। frequency तो पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, क्या होती है? जी। Number of cycles per second that are being measured in hertz। ठीक है, फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस होता है, पिच होती है। ये सारी चीजें इनकाउंटर करती हैं किसी भी एक वेव की क्वालिटी को, कि किस तरह की साउंड क्वालिटी है, किस तरह की वेव की जो है लेंथ है, और वो कितना फ्रीक्वेंसी और कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। सो स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन वेव्स लीड्स टू हायर पिच। द डिस्टेंस बिटवीन साउंड वेव्स ये एडजस्ट करेगा किसी भी साउंड की पिच को। ये हाई पिच को कैटेगराइज कर रहा है, ये लो पिच को कैटेगराइज कर रहा है। जितनी ज्यादा वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही सैंपल्स आएंगे उसके अंदर, और पिच और हाई और लो पिच के हिसाब से भी सैम्पलिंग जो है वो रेट चेंज होता रहेगा। अब ये देखो, ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1/4 सैंपल रेट लिया, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक ही सैंपल आया है, ये सैंपल एक आया है। यहाँ हमने 1/3 सैंपल लिए, यहाँ हमने हाफ सैंपल लिए, और यहाँ हाईएस्ट सैंपल रेट है। ठीक है, अगर तुम देखो तो यहाँ 1/4 के अंदर पुअर रिजेम्बलेंस टू ओरिजिनल, लॉस ऑफ पीक्स हो गए, तो ये फ्रीक्वेंसी कम आएगी, क्वालिटी खराब होगी साउंड की। अगर फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट ही हमारे पास स्टोर नहीं हुआ बाइनरी में, तो साउंड की क्वालिटी तो कम हो जाएगी ना। फिर यहाँ पे भी शार्पनेस कम हो जाएगी। जो मोस्ट पॉसिबल हमारे पास रिजेम्बलेंस होगी वो किसकी होगी? ओरिजिनल साउंड की, जहां पे हमने हाईएस्ट सैम्पलिंग रेट की होगी। गॉट इट? हेलो? Yes, ma'am, got it. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। द मोर द सैंपल रेट कलेक्टेड, द बेटर द साउंड क्वालिटी इनकोडिंग वुड बी इन द कंप्यूटर। सही है? ये देखो, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है एक साउंड वेव का। किस तरीके से बाइनरी जो है वो वेव फॉर्म में कन्वर्ट होता है? सैंपल्स वुड बी टेकन एंड दीज सैंपल्स वुड बी टेकन एज द साउंड वेव्स। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, अब देखो इसकी कम है फ्रीक्वेंसी, तो ये यहीं पर ही इसने सैंपल रेट ले लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी सैंपल उसी के अकॉर्डिंग लिए गए। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर तुम ये देखो कि the greater the number of samples, the higher the quality of the sound would be, जो अभी हमने प्रीवियस यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख लिया था। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो कि अगर कि हमारे पास 2 बिट्स पर सैंपल है, ये देखो 0 1 2 3, 2 बिट्स। 2 बिट्स का मतलब क्या है हमारे पास? जिस तरह हमने इमेज में देखा था 1 2, अगर हम इन दोनों को ऑन कर दें 2 + 1 = 3, कितना ऑर्डिनरी वैल्यू आ गया हमारे पास? 3। यहाँ देखो 3 आ रहा है हमारे पास,
0 1 2 3, ये 3 हमारे पास डिनरी वैल्यू किस केस में है, अगर हमारे पास 2 बिट्स पर सैंपल आ रहे हैं तो। इज इट क्लियर? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट्स इन द ग्राफ व्हाइल टेकिंग द सैंपल्स? मैम ये देखो फिर समझा देंगे। अच्छा, मैं दोबारा समझा देती हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ बिट्स का। अगर सपोज मेरे पास 2 बिट्स है, 2 बिट्स का मतलब क्या होता है, 1 एक मिनट, ये मेरी जरा बैटरी में लगा दूं, जस्ट वेट। अच्छा, तो यहाँ पे है 2 बिट्स। 2 बिट्स का मतलब ये होता है कि ये 2 बिट्स 1 1 + 1 2। अगर मैं इन दोनों को ऑन कर देती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास 2 + 1 = 3। 3 नंबर आ रहा है, तो ये डिनरी नंबर मेरे पास 3 आ गया। यहाँ पे मैंने देखो इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 1 2 3, और 3 पॉइंट आके ये एंड हो गया है। सो इस वक्त कितनी बिट्स पर सेकंड है पर सैंपल? हमारे पास एक सैंपल जो है उसके अंदर 2 बिट्स यूज हुई हैं मैक्सिमम, ये 2 बिट्स पर सैंपल आ रहा है हमारे पास। अब आगे जाके तुम्हें और थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, मैं 2-3 और ग्राफ्स भी तुम्हें दिखाऊंगी। यहाँ देखो तुम्हारे पास सैंपल्स कितने लिए हुए, 1 2 3 4 5 6 पर सेकंड तुम्हारे पास कितने सैंपल्स आए हुए हैं, 6। So these are the 6 samples taken per second in case of 2 bits per sample. और 2 bits में हमारे पास देखो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी चलो अब आगे चलते हैं। यही वाला पॉइंट आगे 2-3 और ग्राफ्स की फॉर्म में आ रहा है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी साउंड वेव को व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल वैल्यूज, यानी 0 और 1 की फॉर्म में जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं? द फर्स्ट वन इज द सैंपल रेट एंड सेकेंड वन इज द बिट डेप्थ। यानी कि ये बिट डेप्थ और सैंपल रेट, ये दोनों चीजें अफेक्ट करेंगी किस चीज के ऊपर, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू द डिजिटल वैल्यूज, व्हेन वी आर टेकिंग द सैंपल्स। दो चीजें, सैंपल रेट जो कि मैंने यहाँ पे सैंपल लिए थे, और बिट डेप्थ। इसकी बिट डेप्थ कितनी थी, 2 बिट्स के हिसाब से यहाँ पर 3 थी इसकी बिट डेप्थ। अब हम आगे चलते हैं, ये दो चीजें किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं। सैम्पलिंग रेट, व्हाट इज द सैम्पलिंग रेट, नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने सैंपल्स लिए गए, यहाँ पे हमने 6 सैंपल्स लिए, तो दैट इज बेसिकली द सैंपल रेट, कि कितने सैंपल्स हमने एक सेकंड में आइडेंटिफाई किए। हम MP3 के हिसाब से देखते हैं, ये एक नॉर्मल पास पेपर के अंदर डिस्कशन हुई है MP3 फाइल का, जो कि हर एस्पेक्ट से उन्होंने पूछा है। दैट्स बेसिकली, अगर हम देखें एक CD के अंदर, तो हमारे पास जो इसका सैंपल रिकॉर्ड सैम्पलिंग रेट होता है वो होता है एक CD के अंदर 441,000, ठीक है, पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 44,100 सैंपल्स लिए जाते हैं किसी भी एक MP3 प्लेयर के अंदर, किसी भी एक MP3 CD के अंदर या DVD के अंदर, सही है। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग रेट का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दी हुई है जो कि हम कंसिडर करेंगे आगे जाके। सैम्पलिंग रेट ऑफ 441,000 साउंड वेव्स विल हैव कितने सैंपल्स पर सेकंड। तो अब यहाँ देख लो, यहाँ कम सैंपल्स लिए हुए, यहाँ थोड़े ज्यादा, और यहाँ उससे भी ज्यादा, ठीक है। ये एक साउंड की रिकॉर्डिंग है जो कि उसने सैंपल रेट के हिसाब से लिया हुआ है। उसका साइज देख लो, यहाँ 8 किलो हर्ट्ज है, 22 किलो हर्ट्ज एंड 44 किलो हर्ट्ज। जितने ज्यादा सैंपल रेट है उसका साइज भी उतना ज्यादा है। साइज का मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है फिलहाल, ठीक है। ठीक है। नंबर 2 जो हमारे पास फैक्टर था वो था बिट डेप्थ का। जिस तरह हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन थी उसी तरह हमारे पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन भी है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इस चीज को आइडेंटिफाई करती है कि साउंड की क्वालिटी क्या है, साउंड की क्वालिटी किस तरह से है, कि साउंड हमारे पास कितना ज्यादा हमारे पास बेटर क्वालिटी में आ रही है आवाज, ठीक है। कभी हम साउंड ट्रैक सुनते हैं तो क्या होता है, साउंड ट्रैक हमारे पास इतना ज्यादा क्लियर नहीं आते,
ठीक है, तो वो बेसिकली उसकी बिट डेप्थ डिसाइड करती है कि क्या बिट डेप्थ है. नंबर ऑफ बिट्स फॉर विच द सैंपल्स हैव बीन टेकन. एक सैंपल में कितनी बिट्स यूज हुई हैं. यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट्स थी इस सैंपल के अंदर, 2 बिट्स थी. इसकी बिट डेप्थ क्या थी, 2. क्यों, मैक्सिमम हमारे पास 3 था. अब हम थोड़ा सा और 2-3 सैंपल्स देखते हैं. यहाँ पे भी हमारे पास 2 बिट डेप्थ है इसकी, बट यहाँ पे कितनी है, 4. कैसे, 1 2 3 4. अगर हम इन सारों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 16. 16. Since it is starting from 0, so it's ended to 15. Is it verifying or validating your answer? 16 bits का है. Yes. अब यहाँ देखो ये 2 बिट का है, 2 बिट डेप्थ है, यहाँ 4 बिट डेप्थ है. यहाँ सैंपल्स देखो कितने टेक रहे हैं. यहाँ पर एक ये सैंपल है यहाँ पे, फिर एक ये सैंपल है, एक ये सैंपल है, एक ये 5. सैंपल है, और ये यहाँ कम है. जबकि यहाँ तुम देखो तो ये सैंपल्स किस तरह दिए हैं, ये 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 और ये. सो हैव यू सीन दैट सैम्पलिंग रेट ज्यादा है इसमें. सैम्पलिंग रेट ज्यादा है. सैम्पलिंग रेट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, कि जब हम इनकोडिंग कर रहे होते हैं तो बिट डेप्थ के ऊपर भी और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, सैम्पलिंग रेट के ऊपर भी, दोनों चीजों पे अफेक्ट कर रहे होते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 सैंपल्स लिए हुए हैं. और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6. सैंपल रेट को हमने कांस्टेंट कर दिया, चेंज क्या किया हमने, बिट डेप्थ को. जब भी हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं हमें किसी एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ता है ताकि हम दूसरे की वेरिएशन करके हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है. सही है. तो यहाँ हमने क्या किया, बिट डेप्थ को कांस्टेंट नहीं रखा, हमने उसको चेंज कर दिया. सैंपल रेजोल्यूशन को हमने, सैम्पलिंग रेट को हमने चेंज सेम रख दिया. आगे चलते हैं हम. दूसरा जो हमारे पास है, ये देखो बिट डेप्थ किस तरीके से क्वालिटी और फाइल साइज को चेंज करेगा. बिट डेप्थ फर्क है, सैम्पलिंग सैम्पलिंग रेट सेम है. और यहाँ पे देखो लोअर बिट डेप्थ लो क्वालिटी बट स्मॉल साइज, हायर बिट डेप्थ हाई क्वालिटी larger file size. Can you validate and verify these concepts? Yes. दूसरे वाले सैंपल के अंदर हमने सैम्पलिंग रेट को चेंज किया है और बट बिट डेप्थ को सेम कर दिया. यहाँ पे भी हमारे पास 16 है, यहाँ पे भी 16 है. ठीक है. अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ देखो 1 2 3. इससे क्या फर्क पड़ा, जितना कम सैंपल रेट लेंगे उतनी क्वालिटी भी खराब होगी और फाइल साइज कम होगा, और जितने ज्यादा सैंपल रेट लेंगे क्वालिटी भी अच्छी होगी और फाइल साइज भी बढ़ेगा. सो दोनों एक ही तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिट डेप्थ हो या सैंपल रेट हो. Yes. समझ आ रही है बात. ठीक है. जी. अच्छा, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हम यूज करेंगे. ये पास पेपर में 2-3 क्वेश्चंस इस तरह के आए हैं, सो बेटर डू देम. देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइल साइज एंड बिट्स. number of samples per second when you multiply them with the number of bits per sample along with the length of sample in seconds. तो ये तुम्हें क्या दे देगा, तुम्हारा पूरा फाइल साइज दे देगा किसी भी साउंड का. ठीक है. किस तरह से, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड ये तो हमने ले लिया. नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल को हम बिट डेप्थ भी कहते हैं. बिट डेप्थ कहते हैं कितने सैंपल बिट्स के हिसाब से कितने सैंपल्स हमने लिए हैं, तो वो हमारे पास आ गया बिट डेप्थ और नंबर ऑफ सेकेंड्स. अगर हम इसको नंबर ऑफ सैंपल्स को सैंपल फ्रीक्वेंसी कह दें और बिट डेप्थ को सैंपल रेजोल्यूशन कह दें और नंबर ऑफ सेकंड्स को टाइम कह दें, तो कैन वी हैव दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ अ साउंड फाइल. Yes. So this is the final formula that when we use then we can easily identify the size of a sound file. So CD की हमने बात की थी जिसके अंदर हमने कितने सैंपल्स लिए थे, 44,100. उसके अंदर बिट्स जो थी वो 16 यूज होती हैं और लेंथ ऑफ सैंपल लाइक हमारे पास टोटल कितना होता है,
हम अगर इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 बिट्स 44,100 और ये कितने सेकंड्स के लिए होता है 3,600 सेकंड के लिए अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास बाइट्स में आंसर आएगा, उसको हम किलोबाइट और फिर मेगाबाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। सो ये एक दफा क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में, तो आई थॉट कि मैं इसको इंक्लूड कर दूं लेक्चर के अंदर। कंप्रेशन पे आ जाते हैं, 5 मिनट रह गए हैं, मैं चाह रही हूँ मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। एक काम करते हैं, कंप्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि मुझे हफमैन में भी टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा, ठीक है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम, नो तो प्रॉब्लम। हम ये वाली चीजें जो है कंप्रेशन वाली हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। हम यहाँ तक एंड करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है, जिसमें हमारा सिर्फ कंप्रेशन का रह गया है, और वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तुम्हारा चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है? ओके, ठीक है। चलो, सो